السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں تو یہی جو ہے ہم نے کچھ لوگوں سے رائے لیا جو ہے کہ یمنی صاحب ہیں، مظفر پور کے رہنے والے ہیں، جو ہم کہا جیسی بات ہے ہم تو مسجد نہیں جا پائیں گے تو نہیں، اور اس مسجد میں ہماری جو ہے اندر سے جو ہے روح نہیں ہماری کہتی ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں، جو ہے یہ لوگ ایسا نماز پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کا عقیدہ پہلے ٹھیک نہیں تھا، جیسے وجود کا باپ کا عقیدہ تھا پہلے وہاں امام صاحب کا، لیکن خیر وہ ختم ہو گیا۔ میں دو بند سے جو ہے اپنا جو کنسلٹ کیا تو خیر لوگوں نے کہا کہ نہیں جو کہہ رہے ہیں ہمارا ہم لوگ کے بارے میں بولے جو کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں، جو سونے کہ اللہ جو ہے اپنے علم سے ہر جگہ ہے، ذات سے ہر جگہ نہیں۔ یہ خیر یہ تو ہوا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کر کے دعا مانگتے ہیں۔ جی کیا چیز؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر کے اور تب دعا مانگتے ہیں جو ہے تو وسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی کا وسیلہ لے کے دعا مانگتے ہیں۔ ہاں نہیں ہماری پڑھ رہے ہیں شرک کتاب جو ہے شرک کیا ہے، اور مشرک کون حافظ جو ہے صلاح الدین صاحب کا اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تقلید جو ہے شرک ہے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے مال پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ یمنی صاحب نے تو ہم کو منع کر دیا کہ نہیں، اور ایک اور عالم آپ پولیس میں تھے؟ ہاں پولیس میں ڈی ایس پی سے میں ریٹائر کیا ہوں ماشاء اللہ۔ کتنے دن پہلے ریٹائر کیا ہوں، 5 سال سے ابھی پڑھا رہا ہوں میں۔ اچھا ابھی وہ گاڑی آتی ہے لے جاتی ہے ہم کو یہاں پہ کال کی ہے۔ تو مطلب کہاں پہ آپ کی تھی پوسٹنگ پہلے؟ پوسٹنگ ہماری یہ جھارکھنڈ ہی میں تھی، جھارکھنڈ ہی میں جو ہے بہار میں رہے تو جھارکھنڈ بن گیا، جھارکھنڈ میں رہے، گھر بھی بنا لیا ہزاری باغ میں ہی۔ اور ہمارے جس بغل میں جو ہے ہم لوگ بیسیکلی دیوبندی تھے، ہم لوگ کے بغل میں جیسے 1-1.5 کلومیٹر پر جو مسجد بھی بن گئی ماشاء اللہ، تو اب کوئی دقت نہیں ہے، ہم لوگ کو پریشانی نہیں ہے۔ یہ گاڑی میں چلا نہیں پا رہا ہوں، اب جو ہے جو آپریشن ہو گیا ہے گاڑی چھوڑ دیا ہے جو چلانا جو ہے، تو یہی بات ہے۔ تو میں آپ سے رائے لینا تھا کہ نہیں کہ میں نے کیا میں نے جو ہے مطلب آپ کا جو مین جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایریے سے گھر سے جو اہل حدیث مسجد ہے وہ دور ہے، اور جو آس پاس جو مسجدیں ہیں وہاں پہ ایک بریلوی کی ہے، ایک دیوبندی کی ہے۔ جی جی۔ اب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو مطلب بھائی جو یہ دیوبندی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ذرے میں موجود ہے، تو ان کے پیچھے نماز ہماری ہوگی کہ نہیں؟ جی جی تو پہلے عقیدہ تھا، لیکن بعد میں جو ہم لوگوں نے خوب ڈسکشن کیا ان لوگوں سے ان کے امام صاحب سے، تو پھر انہوں نے اپنا دیوبند سے اپنا انہوں نے جو ہے لوگوں نے بتایا کہ نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اہل حدیث والے لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو ہے جی۔ تو ابھی کیا دقت ہے آپ کو؟ ابھی دقت یہ ہے کہ وہاں نماز میں یہ لوگ جو ہے میں نے اتنی جلدی سے تیزی سے پڑھاتے ہیں نماز، نہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جو کھڑے ہوتے ہیں جو ہے قیام ٹھیک ہوتا ہے، نہ رکوع ٹھیک ہوتا ہے، نہ سجدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہاں ابھی دعائیں پڑھ رہے ہیں ہم سمع اللہ علیہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تب تک جو ہے وہ چل جاتے ہیں جو ہے نہیں آمین بھی کہنے کا جو ہے میں نے زور سے میں یہ نہیں ہے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تقلید کے بارے میں یہاں پڑھا ہے کتاب، میں نے شرک کیا ہے اور مشرک کو بتایا گیا کہ تقلید ہی شرک ہے، جس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا آپ کو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا جی دیکھیے شیخ، اگر مطلب کوئی مسجد ہے ٹھیک، نماز اس میں
अगर एकदम स्पीड में हो रही है, ठीक, यानी कि देखिए नमाज का जो बेसिक चीज है ना वो है भाई वो उसको नफिस सलाह, यानी कि नमाज में सुकून इख्तियार करो, ठीक। तो हमको नमाज में भाई सुकून इख्तियार करना है, यानी कि हमको कयाम इतनी देर करना है कि हमारी भाई जो हड्डी है रीढ़ की उसको सुकून मिल जाए, ठीक। रुकू हमको इतनी देर करना है कि हमारी जो मतलब जो हड्डी है रीढ़ की उसको एकदम भाई आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए। रुकू से जब हम उठेंगे तो इतनी देर हमको इंतजार करना है कि रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम सुकून पा जाए। उसके बाद जब हम सजदे में जाएंगे तो इतनी देर सजदा करेंगे कि हमारी जो पीछे की हड्डी है उसको सुकून मिल जाए। सजदे से जब हम उठेंगे तो 2 बार जब हम कहते हैं रब्बिक फिल्ली, तो इतनी देर बैठे कि हमारी जो पीछे की हड्डी है उसको सुकून मिल जाए। फिर दूसरा सजदा जब हम करेंगे तो इतनी देर करेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी को सुकून मिल जाए। यानी कि टोटल जो आपकी नमाज है, चाहे वो 2 रकात की हो या 4 रकात की हो, अगर कोई इमाम है मस्जिद का इतनी देर पढ़ाता है कि उसकी और उसके पीछे पढ़ने वालों की जो हड्डी है रीढ़ की उसको सुकून पहुंच जाए, तब तो उसके पीछे पढ़िए। लेकिन अब कोई बिल्कुल एकदम इंजन हो रहा है कि वह फटाफट बाद वो मतलब एक कौवे की तरह सजदे उसने ठोक दिए और ना सुकून है ना कुछ है, तो मतलब इस तरीके की नमाज होती नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी के सामने एक शख्स भाई वो नमाज पढ़ रहा होता है, वो नमाज पढ़ता है, दोनों तरफ दाएं बाएं भाई वो सलाम फेरता है, अल्लाह के नबी को सलाम करता है, अल्लाह के नबी उसको जवाब देते हैं और कहते हैं कि तेरी नमाज नहीं हुई। उसके बाद वो फिर से पढ़ता है, फिर से ऐसे ही करता है, फिर अल्लाह के नबी उसको कहते हैं कि तेरी नमाज नहीं हुई, फिर से नमाज पढ़ता है वो, फिर से अल्लाह के नबी को मतलब भाई को नमाज पढ़ने के बाद कहता है अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नबी उसका जवाब देते हैं और फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि तेरी नमाज नहीं हुई। तो वो जो आदमी होते हैं वो पूछते हैं अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी तो और कैसे नमाज पढ़ूं? तो अल्लाह के नबी उसको बताते हैं कि जब तू कयाम कर तो इतनी देर कयाम कर कि तेरी रीढ़ की हड्डी को एकदम सुकून पहुंच जाए। जब तू रुकू में जा तो मतलब इतनी देर के लिए जा कि तेरी जो हड्डी उसको सुकून मिल जाए। जब तू सजदे में जा तो इतनी देर, मतलब टोटल जो नमाज है उसमें सुकून बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने उस शख्स को 3 बार कहा कि तेरी नमाज नहीं हुई। तो अगर कोई एकदम जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज ही नहीं हो रही है। आप समझ रहे हैं? तो अगर कोई आपके मस्जिद की इमाम है, देखिए इमामत में जो भाई वो नमाज पढ़ाने की जो कंडीशन होती है ना वो थोड़ी अलग होती है। अकेले आप जब नमाज पढ़ रहे हैं तो आप चाहे जितनी लंबी लंबी पढ़ें उसमें आपको इख्तियार है, ठीक। और जब आप मतलब भाई इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो इमाम का जो रूल है तो उसका जो उसूल है वो ये है कि इमाम ना बहुत ज्यादा स्पीड में नमाज पढ़ाएगा और ना बहुत ज्यादा ताखीर से, एकदम 20 की स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से। आप समझ रहे हैं? तो अगर उसकी स्पीड एकदम नॉर्मल है, रीढ़ की हड्डी को सुकून पहुंच रही है, तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा है, आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक, तो इमाम साहब से आप बात कीजिए, कहिए कि भाई आप मतलब इतनी स्पीड में पढ़ाते हैं कि आपको कहीं जाना है, जल्दी है कहीं, आपको दावत वावत आपकी छूट रही है, अरे आराम से पढ़ाइए थोड़ा। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई जी क्या जी हाँ, और दूसरा आपने कहा कि मतलब कोई इमाम ऐसा है जो दुआ में अल्लाह के नबी के नाम से मतलब उनके नाम के वसीले से दुआ मांगता है, तो उसके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है ना? तो देखिए भाई ये बुखारी शरीफ में भाई ये कॉल है, ठीक है, हसन अल बरसी रहीमुल्लाह का, कि बिदती के पीछे नमाज पढ़ लो, क्योंकि बिदती की जो बिदत का बवाल है वो उसके ऊपर होगा। तो इसका जो माना है वो ये है कि अगर कोई, देखिए बिदत भी होती है ना भाई, वो 2 टाइप की होती है। आप समझ रहे हैं? मतलब बिदत तो गुमराही है ही है, अल्लाह के नबी ने कहा कुल्लु बिदतिन जलाला, यानी कि हर बिदत गुमराही है। यानी कि दीन में कोई भी बिदत हो, चाहे वो जैसी हो, चाहे देखने में अच्छी क्यों ना लगे, वो तमाम मेरे भैया बिदत हैं और हर बिदत का ठिकाना जहन्नम के आगे।
लेकिन जो बिदत है वो दो टाइप की है। एक होती है बड़ी बिदत और एक होती है छोटी बिदत। दोनों ही करना भाई ये गुनाह है। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बिदतें कर रहा है तो उसके पीछे नमाज आप पढ़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अकीदा उसका सही हो, अकीदा उसका तौहीद पे हो, लेकिन वो छोटी मोटी बिदतें करता है कि हाँ नमाज के बाद भाई अपने माथे के ऊपर हाथ रख के भाई वो दुआ पढ़ता है, तो ये मेरे भाई उसका अपना अमल है। आप समझ रहे हैं? अगर वो भाई वो नमाज के बाद लोगों के साथ मतलब भाई वो इज्तिमा में अगर भाई वो दुआ मांगता है, अब वो दुआ मांग रहा है, पीछे वाले कह रहे हैं आमीन 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 आमीन, तो ये उसका अपना अमल है। ये जो उसकी बिदतें हैं, ये जो मेरे भाई जो भी वो बिदत कर रहा है छोटी छोटी, ये वो अपना कर रहा है। और जो कॉल है ठीक है वो ये है कि बिदती के पीछे नमाज पढ़ लो, बिदती का बवाल उसके ऊपर होगा। तो इसका मानना ये है कि अगर कोई छोटी मोटी भाई वो बिदत कर रहा है, जैसे भाई वो दुआ में अल्लाह के नबी के नाम के वसीले से दुआ कर रहा है, या भाई वो सलाम फेरने के बाद अपने माथे पे हाथ रख के दुआ पढ़ रहा है, ठीक, तो ये सब छोटी छोटी बिदतें हैं। इन बिदतों में आप उनका साथ आप ना दीजिए, लेकिन वो उनका अपना जाती अमल है, वो बिदत कर रहे हैं, उसका जो बवाल होगा उन पर होगा, आप उससे बरी हैं। तो अकीदा अगर उनका एकदम सही है, दुरुस्त है, तौहीद पे है, तो आप उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो बड़ी बड़ी बिदतें इजाद कर रहा है, जैसे भाई वो मतलब जो ताजिया होती हैं, मतलब भाई वो ताजिया को रख रहा है, ताजिया से मन्नत मांग रहा है, मुरादे मांग रहा है, ठीक, और दीन में नई नई बिदतें वो इजाद कर रहा है, तो ऐसे बिदती की ताजीम भी करना बिल्कुल भाई वो नाजायज है। तो जब ऐसे बिदती की हम ताजीम नहीं करेंगे तो ऐसे बिदती के पीछे नमाज हमारी कहाँ से हो जाएगी। अच्छा, और जनाब ये तकलीद क्या शिर्क है या बिदअत है? भाई देखिए, जो तकलीद है वो एक्चुअल में दीन में है बिदअत। एक नया काम है जिसकी असल और बुनियाद इस दीन इस्लाम में मौजूद ही नहीं है, ना कभी अल्लाह के नबी के दौर में थी, ना कभी सहाबा ने तकलीद किया, ना ताबईन ने तकलीद किया, ना ही तबे ताबईन ने तकलीद किया। तो तकलीद एक दीन में एक बिदअत है। लेकिन जो इसकी किस्में हैं वो इसकी जो मतलब भाई किस्में हैं बाज वो शिर्क तक पहुंच जाती हैं। जैसे तकलीद शख्सी, यानी कि किसी एक शख्स की ही बात को मानना, उसको एकदम हुज्जत बना लेना। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में कहता है कि और उन लोगों ने अपने आलिमों को, उलमाओं को, दरवेशों को अपना रब बना लिया, अपना अल्लाह बना लिया। तो उस दौर में लोग क्या करते थे, जो ईसाई और मतलब जो ईसाइयों के पादरी थे, यहूदियों के पादरी थे, उनके जो उलमा थे, जो उनके मानने वाले थे, उनको ही अपना रब उन्होंने मान लिया था। जाने के अगर वो कहते हैं भाई वो जायज है तो जायज है, नाजायज है तो नाजायज है, हलाल है तो हलाल है, हराम है तो हराम है, तो गोया कि उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना अल्लाह बना लिया। तो ये जो भाई जो ये तकलीद शख्सी है कि जैसे मान लीजिए कोई हनफी है, अब उसने अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को अपना इमाम बना लिया। अब उसको पता नहीं है कि उसके इमाम का क्या फतवा है, क्या कौल है, कौन से मसले में उसने क्या कहा, लेकिन बस उसने अंधेपन में वो मतलब बचपन से सुनता आ रहा है कि हम हनफी हैं, उसके मस्जिद के इमाम साहब ने बता दिया कि तुम हनफी हो, उसके बाप दादा हनफी थे, तो बस वो अंधेपन में अपने हनफी मतलब जो उसका जो मानना है, अकीदा है, मसलक उसके हिसाब से चल रहा है। अगर उसके मसलक में आ गया भाई जायज है तो जायज है, नाजायज है तो नाजायज है, हलाल है तो हलाल है, हराम है तो हराम है, तो गोया कि उसने अल्लाह बना लिया, अपने आलिमों को, इमामों को रब, उन्होंने अपना रब बना लिया। जैसे एक मोहतरम, ये आपको ये लोग कहते हैं ये जो है कुआं में अगर कुत्ता बैठ जाए तो 40 डोल जो है पानी निकाल दीजिए और फिर पानी पीजिए अपना जो है, तो नहीं मतलब जो ये कहते हैं आपको हनफी में जो ये हनफी लोगों का जो ये है तो नहीं। और यहाँ तक हमने सुना है ये इस्रार साहब भी बोलते थे, इस्रार मरहूम साहब 30 में थे,
इंतकाल कर गए, वो भी उनका भी हम सुना है कि हाँ 40 डोल निकाल दीजिए और वो आपका पानी आपका जो है वो साफ हो गया, अपना पीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। जबकि एकदम माने जो है हम लोग के इसमें जो है ये इस तरह बात नहीं है, नहीं ये है कि पूरा निकालना पड़ेगा। माने मान लीजिए एक बार भी अगर मिल जाएगा तो राहत में महसूस होगा आदमी को जो है, नहीं जी। इस बारे में क्या आपका ख्याल है? भाई देखिए, जो ये मसले मसाइल हैं ये किसी आलिम दीन ही आपको बता पाएंगे, लेकिन जो इनके हनफी मसलक में जो आया हुआ है, इनकी जो हनफी मसलक की मोतबर किताब है दुर्र मुख्तार, उसमें ये लिखा हुआ है कि कुत्ता अगर किसी कुएं में गिर जाए तो उस पानी से वजू करना जायज है। बस जो कुत्ते का जो ऊपर का जो भाई वो मुंह है, वो मुंह पानी में ना आया हो। तो यार कौन ऐसे पानी से करेगा वजू, ये बताइए। और दूसरी चीज, इनके वहां तो जो भाई जो कुत्ता है ना, उसकी इतनी अहमियत है कि अल्लाह ही रहम करे, इंसान से ज्यादा भाई कुत्तों की फजीलत आई है। जैसे इनकी जो भाई जो हनफी मसलक की मोतबर किताबें हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल भाई ये इनकी वो दुर्र मुख्तार, उसमें आता है कि कुत्ते को गोद में लेकर नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ते के पिल्ले के जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, उसका मुंह, उसके मुंह को बांध के उसको बगल में दबा कर नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ते की खाल को रंग के सुखा के उसको जानमाज बनाकर उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करना जायज है। और इनके जो हनफियों के एक मानने वाले दावेदार हैं बरेलवी भाई, उनके जो इमाम थे, इमाम अहमद रजा खान साहब आला हजरत, जिनको आमतौर पे लोग कहते हैं इनके मानने वाले, उनका कौल है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और इनकी बात किताबों में आता है, जैसे मलफूजात आला हजरत हो गया, हदायके बख्शीश हो गया, उसमें आता है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और इनके जो आलिम दीन है जैसे इलियास कादरी, वो बीच पब्लिक में कहते हैं कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। इनके दूसरे जो आलिम है अहमद नक्शबंदी हैदराबादी, वो अपनी तकरीर में कहते हैं कि मैं गौस का कुत्ता हूँ। और इनके जो आलिम दीन है वो बीच पब्लिक में मतलब आला हजरत को कुत्ता बोलते हैं। वो कहते हैं आला हजरत कौन था, आला हजरत तो कुत्ता था। तो कुल मिला के इन हनफी मसलक में इंसानों से ज्यादा, सहाबा इकराम से ज्यादा इनके वहाँ कुत्ते की अहमियत है। इंसान के बच्चे को गोद में लेके नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज क्या है वो तो हनफी लोग अपने मुंह से बताएंगे, लेकिन कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना इनके वहाँ जायज है। तो इनके मसलक में बहुत सारी भाई इस टाइप की बातें हैं जिनका मेरे भाई कुरान और हदीस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और अगर वाकई कुछ भाई ये दावा करता है कि हम तकलीद करते हैं और हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के सच्चे हनफी मुकल्लिद हैं, तो वो हमें एक वीडियो बना के भेजे जिसमें वो भाई कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेके नमाज पढ़े, और अगर बड़ा वाला कुत्ता हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़े, और कुत्ते को वो बाल्टी में, कुएं में, टब में फेंकें और उस पानी से वजू करें। तो हम जाने ना कि हाँ भैया ये लोग हैं मुकल्लिद हैं, हनफी मुकल्लिद। ऐसे हवा में थोड़ी ना मान लेंगे। मैंने तो आज से 2 साल पहले कहा था कि इस दुनिया में कोई मुकल्लिद नहीं है, सब गैर मुकल्लिद है, सब गैर मुकल्लिद हैं। यहाँ तक कि ये बरेलवी देवबंदी जो ये मतलब भाई ये झूठा दावा करते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हम तो मुकल्लिद हैं, जो अपनी छाती भाई पीट पीट के बोलते रहते हैं, उनसे भी मैंने कहा कि आप लोग भी गैर मुकल्लिद हो, कोई मुकल्लिद नहीं है। और अब ये लोग क्या कहते हैं, अब आएंगे दूसरे रास्ते से कि ये जो आप सब फतवे पढ़ रहे हैं, हाँ ये लिखे हैं, हमारी किताबों में लिखे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो साहिबैन है उनका फतवा नहीं है। अब देखिए, अब आएंगे दूसरे रास्ते से, यानी कि इनके आलिमों का फतवा नहीं होगा, या तो इनके जो भाई वो जो अल्लामा लोग हैं, साहिबैन लोग हैं, उनका फतवा नहीं होगा। तो कहते हैं कि हम इसको मानते हैं, इबारत को मानते हैं,
لیکن اس کے اوپر فتوا نہیں ہے اس لیے ہم عمل نہیں کرتے. تو انہی کی در مختار میں آتا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے قول کو رد کرے اس کے اوپر ریت کے ذروں کی بارش ہو. بھائی ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ قول ہے اس قول پہ فتوا نہیں ہے, تو یعنی کہ اس قول پہ فتوا نہیں ہے, یعنی کہ فتوا دینے والے نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی مطلب ان قولوں کو رد کر دیا. اور انہی کی در مختار میں آتا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی قول کو ان کی رائے کا رد کرے اس کے اوپر ریت کے پتھروں کے برابر کنکڑ کے برابر اس کے اوپر بارش ہو. تو اب بتائیے. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا چاروں امام برحق ہیں, چاروں امام بھائی وہ برحق ہیں اور اس میں سے کسی ایک کی بھائی پیروی کرنا تقلید کرنا واجب ہے, آپ چاہے جو بن جاؤ, چاروں امام میں سے کسی ایک کے پیچھے چلنا ہی چلنا ہے. یہ ان کا دوگلا پن ہے, کیونکہ ان کی فتاوی عالمگیری میں یہ صاف صاف آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر وہ حنفی سے شافعی بنتا ہے تو اس کو پنشمنٹ اس کو دی جائے گی, اس کے اوپر جو تعزیر ہوتی ہے لاگو ہوگی. تو اب بتائیے اگر آپ کہہ رہے ہیں چاروں امام برحق ہیں تو انسان کو چھوٹ ہے نا, چاہے تو وہ حنفی بنے, چاہے شافعی, چاہے ملکی, چاہے حنبلی, اس کو چھوٹ ہے. لیکن یہاں دوگلا پن کیا ہے, زبانی دعویٰ تو یہ چاروں برحق ہیں جو بننا ہے بن جاؤ, لیکن میرے بھائی اصلیت کیا ہے کہ اگر کوئی حنفی سے شافعی بن جاتا ہے یعنی کہ حنفیت کو چھوڑ دیتا ہے اور شافعیت کو اختیار کر لیتا ہے تو اس پر تعزیر لاگو ہوگی. معاذ اللہ. اب بتائیے کہاں سے اصول لے کے آئیے؟ اللہ کے نبی نے بتایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب کسی آیت میں کہا کہ ہاں بھائی تعزیر دو. تو یہ سب بہت میرے بھائی پیچیدہ باتیں ہیں, باریکی باتیں ہیں. یہ تھوڑا جو ان کے عالم لوگ ہیں نا ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن اب وہ کریں کیا. میری کافی عالموں سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں یار افو بھائی بات آپ کی صحیح ہے, لیکن اب معاشرے میں اتنا فیمس ہو گئے, ہم اس مسجد میں ہم 35 سال سے ہم نماز پڑھا رہے ہیں, ابھی اگر مان لو ہم بھائی کتاب و سنت پہ آ جائیں گے اور تو یہی لوگ ہمارے کہیں گے کہ تم نے مطلب اتنے سالوں سے ہمیں کائے کے لیے دھوکہ دیا. اور اگر مانیے ہم سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور اگر ہم رفع دین اگر ہم بھائی ہم کرنا چالو کر دیں تو ہم کو جو کمیٹی ہے ہماری ہٹا دے گی مسجد سے. تو بیچارے کافی سارے بھائی جو حنفی امام ہیں ان کو حقیقت پتہ ہے, اور الحمدللہ بس وہ اپنی فیملی کی وجہ سے یا مطلب بھائی ان کی نوکری نہ چھوٹ جائے, امامت نہ چھوٹ جائے, اس وجہ سے وہ خاموش ہیں. تو ایسا نہیں ہے, پتہ سب کو ہے. اب کوئی مانے تو الحمدللہ, اور مان کے بھی انکار کر دے تو میرے بھائی وہ تو بھائی کافر ہو گیا. کیونکہ کافر کا معنی کیا ہوتا ہے, جو بھی بھائی انکار کر دے حق کا, تو جس نے حق کا انکار کر دیا وہ تو کافر ہو گیا. تو کم سے کم مانو تو. جیسے ہمارے مسجد کے بھائی جو امام صاحب ہیں الحمدللہ کافی ان سے بات ہوئی, قریب 1 سال ان سے بات چلی, ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات چلی, اور الحمدللہ بھائی انہی کی عبارتوں سے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے سب ان کی اصلاح نے کی. جب اصلاح ہوئی تو انہوں نے کم سے کم مانا تو, قبول تو کیا کہ ہاں بات یہ ٹھیک ہے, لیکن اب وہ عمل نہیں کر رہے ہیں, یہ ان کو اللہ کو حساب دینا پڑے گا. لیکن مانا تو کم سے کم یہ حنفی مقلد مانے تو کہ ہاں بھیا ہم جو کر رہے ہیں اہل حدیث کا جو بھائی مطلب عمل ہے, طریقہ ہے, وہ صحیح ہے, وہ مان تو لیں بھلے وہ عمل نہ کریں. لیکن کیا ہے یہاں پہ تعصب, اہل حدیث کچھ بھی کرے گا بس وہ مطلب غلطی ہوگا. اہل حدیث اگر کہہ رہا ہے کہ دین اسلام میں بھائی 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں تو بھی غلطی ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ اہل حدیث کہہ رہا ہے. لوگوں نے ایسا اپنا مائنڈ بنا لیا ہے, مزاج اپنا بنا لیا ہے کہ اہل حدیث جو کہے غلط ہے, اس کی سنو مت. تو یہ سب معاملہ ہونے لگا. تو ہمارے جو ہے کہ یمنی صاحب ہیں وہ آتے ہیں, عالم ہیں ہمارے, وہ مظفر پور رہنے والے. گھر ملاقات ہوگی آپ سے جو ہے ابو بھائی, آپ سے ملاقات شاید ہوگی, ہمیں ملاقات ہے ان سے. یمنی صاحب سے وہ جانے جاتے ہیں, ہم لوگ نہیں ابھی تو میری ملاقات ان سے پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے بھائی وہ فیس ٹو فیس جانتے ہو, نام سے نہ جانتے ہو. ہاں تیرا سب پہچانتے ہوں گے ان کو. بڑا اکثر آتے رہتے ہیں مظفر پور رہنے والے بچہ, اکثر یہاں ہمارے مسجد میں آتے رہتے ہیں جو ہے.
यहाँ हजारीबाग में अहले हदीस की मस्जिद जो है बनी है, और माशाल्लाह दूसरी बनने की कोशिश हो रही है, इंशाल्लाह वही बन जाएगी जो इंशाल्लाह। तो जी वही हमको बताए थे कि नहीं आप जो है नहीं यार एक फिल्म थे उनका जो है हमने वीडियो सुना था नहीं, ऑडियो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनवारुल हक। अनवारुल हक। अच्छा ये तो जो ये मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? ये नंबर हमको मिला शहबाज, हमारा एक मैंने ये है वो तो समझिए कि हमारा नाती की उम्र का है। अच्छा। तो वही जो है कल परसों आया हुआ था हमारे घर पर जो है। अच्छा। बड़ा जानकारी है आपके साथ उसको बात की है शायद। अच्छा। वही नंबर आपका दिया और नदीम भाई का नंबर ही वही दिया गया। वही नदीम भाई से ही बात हुई। तो यमी साहब ने हमको कह दिया कि नहीं आप जो है सेहत के इसके लिहाज से और ये सब जो आपने बताया तो लिहाज से जो है अपना घर में ही आप जो पढ़िए। और कभी हाँ जब आपके भाई मतलब वो डायबिटीज है और आपका मतलब ओपन हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका है और मस्जिद अगर अहले हदीस की दूर है तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो जो पास की मस्जिद है वहाँ पे जाके अकेले अपना नमाज पढ़ लीजिए, या तो अपने मेरे भाई घर के अंदर अपने रूम में नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन अव्वल टाइम पे नमाज पढ़ लीजिए। अव्वल टाइम पे ना भाई जब अकेले आपको नमाज पढ़नी है, और अकेले अगर आपको नमाज पढ़नी है तो जो आप नमाज पढ़ते हैं फर्ज, तो फर्ज नमाज पढ़ने से पहले जो इकामत होती है उसको आप दे दिया कीजिए। हाँ इकामत अगर आप दे देंगे तो नमाज का जो मतलब भाई वो सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अबू भाई साहब कैसे नाम सुना था कि सुन्नत की नमाज बिदअती के पीछे नहीं होती। एक आलिम जो हमारे हदीस के आलिम जो है जो कैसे सुना जी मैंने आपको अभी हमने बताया था ना कि बिदअती के पीछे जो भाई वो नमाज है उसके ताल्लुक से मैंने आपको बुखारी शरीफ का जो एक कॉल है आपको वो कॉल पढ़ के बताया है कि भाई वो हसन अल बरसी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि बिदअती के पीछे नमाज पढ़ लो, क्योंकि बिदअती का जो बिदअत का बवाल है वो उसके सर पे होगा। तो ये अब इससे माना क्या मुराद है, ये नहीं है कि कोई भी मतलब बिदअती है उसके पीछे जाके नमाज पढ़ लिया, नहीं। बिदअती ये है कि जैसे मान लीजिए भाई कोई इमाम है, अकीदा उसका ठीक है, अल्लाह को भी मानता है, तौहीद को भी भाई वो मानता है, और अल्लाह के साथ भाई वो किसी को मतलब शरीक भी नहीं करता है, लेकिन जो बिदअतें करता है छोटी मोटी, जैसे भाई वो नमाज के बाद अपने भाई वो माथे पे हाथ रख लेता है, ठीक, या मतलब भाई जब वो दुआ मांगता है तो लंबी लंबी मांगता है, सबके साथ मांगता है, तो जो इसकी बिदअतें हैं उसमें इन्वॉल्व आप ना होइए, लेकिन उसके पीछे नमाज आप पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह भाई वो अल्लाह ताला भाई उसको कबूल कर लेगा। लेकिन अब कोई बड़ी बड़ी बिदअतें इजाद करता है जो मतलब भाई वो मज़ारों से और आस्थानों से मुर्दों से मांग रहा हो और ताजियादारी कर रहा हो, उनसे मन्नतें मुरादें मांग रहा हो, अकीदा बिगड़ा हुआ हो, मुशरिक हो, बिदअती हो, उसके पीछे नमाज तो बिल्कुल ना पढ़िए, कतई ना पढ़िए, इससे अच्छा अकेले पढ़ लीजिए। हो गया अब देखिए ये तो आपको अपनी मस्जिद के इमाम साहब को देख के पता चलेगा। अब भाई ये अपने अपने माशरे के हिसाब से, जमीन जमाने माहौल के हिसाब से जो भी इमाम हो, अगर भाई अब जाहिर सी बात है अगर हमारे मोहल्ले का जो इमाम है, मस्जिद का इमाम है, तो उसका अकीदा तो हमको मालूम ही होगा ना। अगर उसका अकीदा सही है, तौहीद परस्त पे, लेकिन छोटी मोटी बिदअतें उससे हो जाती है तो उसकी भाई इस्लाह भाई आप करते रहिए और उसके पीछे नमाज भी पढ़ते रहिए। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा मतलब बिदअती है, यानी कि ऐसा बिदअती कि अल्लाह ही रहम करे, दीन में इतना आगे पहुंच गया है बिदअत करने में कि अब उसको वापस लाना ही मुश्किल है। और उसने मेरे भाई एकदम जितनी बिदअतें थी, ये कूंडा, 40वां, छठी, चिल्ला, बरसी, 11वीं, 12वीं, ईद मिलाद, शबे बारात, शबे मिराज, इसको अपना दीन बना लिया है और इसमें एकदम डूबा हुआ है। तो इतने बड़े बिदअती के पीछे तो मेरे भाई कोई नमाज नहीं होगी, और ऐसे बिदअती इंसान की कोई ताजीम भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भाई।
यही नंबर मेरा है, यही नंबर है। व्हाट्सएप पे आप हैं? जी व्हाट्सएप पर नहीं है, हम बूढ़े आदमी सब लोग क्या व्हाट्सएप पर रहेंगे। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 67 साल उम्र है। अच्छा 67? जी हाँ। अरे अल्हम्दुलिल्लाह जवान है। मोमिन कभी भाई वो मोमिन कभी मतलब भाई वो बूढ़ा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अल्लाह ताला आपसे और काम लेगा दिन का इंशाअल्लाह। अब आपने पुलिस की नौकरी तो अल्हम्दुलिल्लाह कर ली, अब थोड़ा अल्लाह की दीन की भी नौकरी हो जाए तो इंशाअल्लाह हम आपके लिए दुआ करेंगे, लोगों से भी कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानो ताला आपकी सेहत में, उम्र में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।